the White Slate Padhai. Here at the White Slate Padhai, we try to simplify each and every concept of science so that it gets fit in here and you get a different angle to view the things, to perceive all the things which we are watching in our day-to-day life. Those who are watching us for the first time, I am Shweta Bajpayee and I give you ideas of various things which are present there in science. Today we are going to take upon one such thing which is electric current and its effect, which is a topic for class 7. In class 6th also some things were done related to electric current. So brush up that layer from your mind and then come back to this one. Okay. In class 6th you must have learned exactly that what is meant by electric current. So now we know that electric current is a type of energy, just like the energy which we get from the food. Similarly, electric current is also a type of energy which we are producing from various things like electric cell, batteries, solar powers and water power, wind power. We are using all these natural resources to produce this energy which we all are getting, and we are paying a high cost for this thing. So we should know that what things are good for us, how to connect these things, how not to connect, and it is very harmful for us. That is why this chapter is here in class 7. Because you all are curious enough in this age, you want to experiment with each and everything. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेरिमेंट करने की चीज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कुछ और है, उससे हमें बहुत ज़्यादा बच के रहना होता है. तो इसीलिए हम इसे क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किस चीज के लिए कैसी अप्रोच रखनी है. आप अपनी क्यूरियोसिटी को आगे रखिए, लेकिन साथ में इस चीज का भी ध्यान रखिए कि वो हमारे लिए कितनी यूजफुल है और कितनी हार्मफुल है. So let's start the class today with an activity, and that activity is that you have to make a diagram of a simple circuit in your notebooks. आपको अपनी notebooks में, किसी भी रफ notebook में कहीं पे भी एक simple electric circuit का diagram बना के देखना है, जो आपने क्लास 6 में देखा होगा. मैं भी सोचती हूँ कि मैं क्लास 6 में दोबारा चली गई हूँ और वहां पे जाके एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम आपके लिए बनाती हूँ. आप भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए हमारे लिए, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट जो भी आपने क्लास 6 में देखा था. So what I have seen in my class 6, I will make that. So I have seen a battery which have positive and negative terminals, and then that battery was being connected to a bulb and it was also connected to a switch. So I have learned that to make a switch with the help of a safety pin. So I am making that I have connected it with the safety pin, using it as a switch. And then in turn these things were connected with a bulb. Now I am not very good in drawing, so I am making this bulb in this fashion. You can make it as you wish to make it. So this is all what I have learned in class 6. That I would make a cell, I would make a switch, and I would connect a bulb with it, and as the bulb is glowing, so I will also make these things around it to show that yes, the bulb is glowing. So this is what we have learned in class 6. अब मेरी ड्राइंग ऐसी है, अब आप मेरी ड्राइंग के साथ अपनी ड्राइंग को कंपेयर करो, आप देखोगे बहुत डिफरेंसेस होंगे उसमें. जैसे मैंने बनाई है, आपने शायद वैसे बिल्कुल ना बनाई हो, शायद किसी ने बैटरी के साथ या सेल के साथ डायरेक्टली बल्ब को कनेक्ट कर दिया हो, स्विच बनाया ही ना हो, स्विच बनाया हो तो अलग बनाया हो, बल्ब का डायग्राम आपका अलग हो और सेल का डायग्राम आपका अलग हो, क्योंकि सबकी ड्राइंग स्किल्स अलग अलग टाइप की होती हैं. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि क्यों ना हम ऐसे सिंबल्स बनाएं जो हर चीजों के लिए, हर एक इन रिप्रेजेंटेशंस के लिए एकदम सेम हो. चाहे मैं यहाँ पे बनाऊं बैटरी या इलेक्ट्रिक सेल, चाहे मैं यूके में जाके बना लूं, चाहे मैं कहीं और अफगानिस्तान में जाके बनाऊं, वहां पे हर कोई इसका एक ही जैसा मतलब समझे. तो इसके लिए हमने क्या किया, कुछ सिंबल्स बनाए. हमने नहीं बनाए, साइंटिस्ट ने बनाए. तो अगर आपको लगता है कि ये चीज बड़ी, ये चीज छोटी, ऐसी क्यों है, तो प्लीज उसके लिए आपको साइंटिस्ट से कांटेक्ट करना होगा, जो कि अब मुश्किल है क्योंकि अब वो तो है नहीं. तो अब हमें ऐसे ही याद करने होंगी इन सब चीजों को. सो लेट्स सी दैट व्हाट आर दोस सिंबल्स. लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इजी वन, दैट इज इलेक्ट्रिक सेल. कि इलेक्ट्रिक सेल का कैसे हमारा सिंबल बन सकता है. इलेक्ट्रिक सेल सबसे पहले होता क्या है, I hope by now you all know that electric cell is a small device which converts chemical energy into electrical energy. ये हमने 6th क्लास में पढ़ा था. और इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक सेल जो है उसमें हमारे
2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इसमें बीच में हमारी कार्बन की रॉड होती है, एक कार्बन रॉड है, और कार्बन रॉड के साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसमें। वो इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी जिंक एंड अदर टाइप ऑफ केमिकल्स आर प्रेजेंट हियर, जिनके वजह से हमें इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। So electrical cell is a device which converts chemical energy into electrical energy. It have positive negative terminal, a carbon rod and electrolytes present in it. So इतना मुश्किल है इसका ऐसे डायग्राम बनाना, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसका एक सिंबल सोचेंगे सबसे पहले। तो वो सिंबल है, इजी सा सिंबल है बिल्कुल। हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाने के लिए एक बड़ी सी लाइन बना दी और नेगेटिव टर्मिनल को दिखाने के लिए एक छोटी लाइन बना ली, बस बन गया हमारा इलेक्ट्रिक सेल। साथ में इसमें कनेक्टिंग वायर्स लगा दो। अभी अपने कन्वेंस के लिए, याद करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आप लिख भी सकते हो, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इजी वन। नाउ सेकेंड विच आई हैव यूज्ड इन दिस वाज कनेक्टिंग वायर्स। तो वायर्स को बनाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, वैसे ही सिर्फ एक सिंपल सिंगल लाइन की जरूरत होती है, ना आगे ना पीछे, कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंपल स्ट्रेट लाइन, एंड दैट विल कंक्लूड कि यहाँ पे आपने कनेक्टिंग वायर्स बनाए। देन व्हाट आई मेड इन द प्रीवियस वन, आई मेड एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब की ड्राइंग बनाना तो बड़ा हार्ड है, ऐसा हम में से कुछ लोग सोच सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में हमने क्या क्या देखा था 6th क्लास में, कि उसमें एक ग्लास केस था, उसमें एक मेटल केस था नीचे की तरफ, फिर उसमें एक फिलामेंट था यहाँ पे कहीं, ठीक है, जो कि टंगस्टन का बना हुआ था। These all things we already know about the electric bulb. तो जो जो चीजें हमें पता है बस उसी के बेसिस पे हम यहाँ भी बना देंगे। सबसे पहले तो हम एक दिल बनाएंगे, ठीक है, इस टाइप का कनेक्टिंग वायर्स के साथ एक हमने दिल बना लिया, और इसके ऊपर हमने बस ये ग्लास का केस लगा दिया अपना बल्ब बनाने के लिए। बन गया बल्ब का सिंबल। कितना इजी है ना, एक छोटा सा दिल धड़कता हुआ और उसके ऊपर एक ग्लास का केस। So this was all about how to make symbol of electric bulb. फिर आता है नेक्स्ट चीज जो हमने अपने इस इलेक्ट्रिक सेल के डायग्राम में नहीं बनाई थी, स्विच। तो अब स्विच के साथ हमारी 2 कंडीशंस आती हैं। हम सबको पता है जो स्विच है उसका काम क्या होता है, हमारे सर्किट को ब्रेक करना और या फिर ओपन करना और क्लोज करना। जब सर्किट ओपन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो, व्हेन द सर्किट इज क्लोज देन द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। So here switch should be in 2 positions. One is for the on position and the other one would be in the off position. तो दोनों positions हमें show करने के लिए आनी चाहिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में। So what we will do here, when the switch is in on position, हम पहले बनाएंगे सर्किट का एक हिस्सा। ये बना लिया मैंने एक हिस्सा, दोनों तरफ कनेक्टिंग वायर्स और बीच में मैंने उसको छोड़ दिया। अब क्योंकि स्विच ऑन पोजिशन में था, इट मीन्स कि इन दोनों पॉइंट्स को भी कनेक्ट होना चाहिए, तभी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगी। सो आई विल जस्ट मेक अ लाइन लाइक दिस एंड इट कनेक्ट्स। तो ये हो गया हमारा स्विच इन ऑन पोजीशन, क्योंकि ये कंप्लीट है सर्किट। इसके ऊपर आप एज्यूम कर लो कि पूरा सर्किट हमारा बना हुआ है, तो बस ये स्विच इन ऑन पोजीशन हो गया। सिमिलरली जब ऑफ बनाना है, फिर से मैं सर्किट का एक पार्ट बनाऊंगी छोटा सा। अब इस बार ऑफ है तो इसका मतलब इन दोनों को कनेक्ट नहीं करना है, इन दोनों के बीच में ये ओपन होना चाहिए। सो नाउ आई हैव ओपन दिस अप, I will not connect this line here. So this will become switch in off position. है ना, कितना इजी अब तक, कुछ भी हार्ड था इसमें, सारी की सारी चीजें इतनी इजी हैं। अब लास्ट में आती है हमारी बैटरी। पहले तो हमने इलेक्ट्रिक सेल देख लिया, लेकिन ये बैटरी क्या चीज होती है। सो वी ऑल नो, क्योंकि ये भी हमने 6 में पढ़ा था कि बैटरी जो है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। जो हमने ऊपर बनाया हुआ ना डायग्राम सेल्स का, वही वाले सेल्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो अब मैंने सेल्स में क्या लिया था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे भी मैं एक पॉजिटिव बनाऊंगी एक नेगेटिव। यहाँ क्या लिखा है हमने, 2 और मोर सेल्स। इसका मतलब 2 तो हमें लेने ही होंगे। ये एक सेल बना दिया, एक और बना लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ बैटरी थोड़ी अच्छी सी बनाती हूँ अपनी, ज्यादा पावर वाली, तो एक और लगा देती हूँ। चलो, सो दिस इज द सिंबल फॉर द बैटरी। आप इसमें 2, ये 4 भी यूज कर सकते हो, और चाहे तो एक और फिर उसके बाद इसमें आपको वही अपने कनेक्टिंग वायर्स बना लो। ये नेगेटिव साइड हो गई और ये पॉजिटिव। हियर इज द सिंबल फॉर अ बैटरी। अब इसमें आप बोलोगे कि मैम हमने इसको ऐसे क्यों बनाया है, जरूरी है कि हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नेगेटिव बनाए।
हम मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे ऐसे ना बना के मैं इसे ऐसे बनाऊंगी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई, मैं ये क्यों ना बनाऊं, ये क्यों बनाऊं। सो हियर इज द आंसर फॉर यू ऑल कि हमें इसे ऐसे ही बनाना होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही इलेक्ट्रिसिटी जाती है। अब आप यहाँ देखो, नेगेटिव से चली पॉजिटिव पे आके रुक गई, नेगेटिव से चली पॉजिटिव पे आके रुक गई, तो ये तो आगे फ्लो ही नहीं होगी हमारे सर्किट में, बस यहीं पर आके रुक जाएगी। अगर मैं इस चीज को एक सर्किट पे आपको बनाकर दिखाती हूँ, ये मेरी एक बैटरी है, ये मैंने इधर बना ली, इसे मैंने यहाँ पे ये एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया, वन सेकेंड, so here I have connected it with a bulb and then I have made a switch which is in of course on position and here we go. Now tell me, यहाँ नेगेटिव से निकल के यहाँ पॉजिटिव पे खत्म, यहाँ नेगेटिव से निकल के यहाँ पॉजिटिव पे खत्म, यहाँ तक तो आई नहीं, बल्ब तक तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आ ही नहीं पा रही है। बट अगर मैंने इसी चीज को सही तरह से बनाया होता, जैसे बनाना चाहिए नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से, तो अब देखो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव से, और आई वुड से जस्ट मेक इट लाइक दिस, यहाँ नेगेटिव से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इस स्विच में से पास होती हुई आगे जाएगी और हमारे बल्ब को ग्लो कर देगी और फिर उसके बाद ये पॉजिटिव तक पहुंच जाएगी। इसलिए हमें हमेशा इस तरह से सर्किट को बनाना चाहिए कि पूरा एक सर्किट यहाँ कंप्लीट हो, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव तक जा सके। So always this thing would be considered as wrong and only this thing would be considered as the correct one. Keep these things in mind. So this was all for today. Precise one and easy one. Practice these symbols at your house, and if you face any problem then do let me know in the comment section. Also let me know if you want a video for some other topic other than electricity and circuit and the other chapters for any class. It can be for any class, for 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, whatever you wish. I would make a video over that. Okay? So thank you everyone. Subscribe the channel and don't forget to share it with your friends.